Good morning, student. Welcome to the engineering thermodynamics. Okay, in last lecture, we studied about thermodynamic equilibrium. When a system is said to be thermodynamic equilibrium, when the system is in thermal equilibrium, mechanical equilibrium, and chemical equilibrium, then the system is called as a thermodynamic equilibrium. When system is in thermal equilibrium, when there is a no temperature difference between system and surrounding, when the system is in mechanical equilibrium, when there is no any unbalanced force between system and surrounding, the system is said to be in chemical equilibrium when their chemical composition and physical structure does not changes, that is called as a chemical equilibrium. Then our system is said to be thermodynamic equilibrium. After that we studied about quasi-static process. What is quasi-static process? Quasi-static process, that is a reversible process. Okay, when a process is proceed in a such a way that that system remain infinitely close to an equilibrium state. Okay, in this we studied example, that is a piston cylinder arrangement in which weights are applied over the pistons and weight one removed one by one. Then we get equilibrium states when state changes from one state to another state. Okay, that is called as a quasi-static equilibrium. After that we studied about zeroth law of thermodynamics, which defines temperature, that is when two systems are thermal equilibrium with third body, then these two systems are also in thermal equilibrium with each other, that is defines zeroth law of thermodynamics. Next we define about point function and path function. Point function, the function which defines the state of the system, that is called as the property which defines the state of the system, that is called as a point function. The property which depends on path of the system, that is called as a path function. Point function value depends on that particular point, but path function value which is depends upon that path, that is the area covered by this path, that is पाथ फंक्शन वैल्यू पॉइंट फंक्शन. ओके, ध्यान में रखिए, पॉइंट फंक्शन वैल्यू उस पॉइंट की वैल्यू डिफाइन करता है, लेकिन पाथ फंक्शन जो है उसकी वैल्यू जो रहती है वो पाथ का जो एरिया अंडर कवर किया है उसके ऊपर क्या डिपेंड रहता है, पाथ फंक्शन. ओके, पॉइंट फंक्शन जो रहता है उसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल एग्जैक्ट वैल्यू रहती है, लेकिन पाथ फंक्शन रहता है उसकी इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल. ओके, दैट इज वी डिफाइन अबाउट डेल्टा. ओके, we define about delta. So path function properties are work and heat. Okay, so work can be calculated by using area under the curve PV diagram, and heat can be calculated under the curve area under the TS diagram, temperature entropy diagram. In last lesson we studied about the point function and path function. Okay, now we start the next topic, heat. Okay, start with the heat. First start with the energy. What is energy? Energy is defined as capacity to do work. Okay, energy is defined as capacity to do work. Okay, so energy is classified basically in two types: transient energy and stored energy. Okay, energy is classified into two types: transient energy and stored energy. What is transient energy and what is stored energy? Transient energy means the energy which crosses the boundary. The energy which crosses the boundary is called as a transient energy. Means what? Means energy that is crosses from system to surrounding or surrounding to system. So energy crosses the boundary. That energy is called as a transient energy. Okay, what is the example of transient energy? That is the heat and work, which is a transient energy. That is heat crosses the boundary and work also crosses the boundary. So heat and work are transient energy. Now what is stored energy? Stored energy means the energy which is within the system. The energy which is within the system, not crosses the boundary. Okay, the energy which is within the system or bound surrounding and not crosses the boundary, that energy is called as the stored energy. What is the stored energy example? That is a kinetic energy, potential energy and internal energy. These energies are called as the stored energy. So
total energy is equal to transient energy plus stored energy. Transient energy which crosses the boundary, stored energy which not crosses the boundary. Transient energy, heat and work. Stored energy, potential energy, kinetic energy and internal energy. So total energy is equal to transient energy plus stored energy. Okay, now we start with the heat, that is a transient energy. When heat will be transferred, heat will transfer when there is a temperature difference. Heat always flows from higher temperature body to lower temperature body. ओके, जैसे कि कहीं पे हायर टेम्परेचर और कहीं पे लोअर टेम्परेचर है, तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी? हीट हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो होगी. ओके, सो हीट, व्हाट इज हीट? इट द फॉर्म ऑफ एनर्जी that is transfer across the boundary. Okay, because heat is the transient energy, so it crosses the boundary of system. ओके, हीट कब क्रॉस करेगी? जब आपका टेम्परेचर डिफरेंस होगा. मतलब जैसे कि सिस्टम का टेम्परेचर कम है और बाउंड्री का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो सॉरी सराउंडिंग का, तो हीट कहाँ से कहाँ जाएगी? हीट आपकी सराउंडिंग से सिस्टम तक चली जाएगी. तो ये क्या है आपका हीट. Okay, heat is the form of energy that is transferred across the boundaries of system because of temperature difference between system and surrounding. Heat always flows from higher temperature body to lower temperature. Okay, अगर आपके सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर सेम होगा तो हीट ट्रांसफर होगी क्या? नहीं. तो उसमें क्या होगा? वो थर्मली इक्विलिब्रियम होगी सिस्टम एंड सराउंडिंग. देन देयर विल बी नो हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. ओके, अभी देखना है इंपॉर्टेंट साइन कन्वेक्शन. अभी साइन कन्वेक्शन मतलब क्या है? जो कि हीट की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, वो अभी आपको डिफाइन करनी है. तो एग्जाम्पल में आपको आपको न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन दिया जाता है, वहाँ पे हीट आपको दी जाती है, लेकिन वो हीट पॉजिटिव है या निगेटिव है वो कैसे डिफाइन करना है? तो बाय यूजिंग साइन कन्वेक्शन. अभी साइन कन्वेक्शन कैसे है हीट के? अगर कोई आपके सिस्टम को हीट प्रोवाइड करता है, मतलब हीट गिवन टू द सिस्टम, देन हीट इज पॉजिटिव. ध्यान में रखिए, हीट गिवन टू द सिस्टम देन और हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, देन हीट इज, कंसिडर करता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ. इफ 50 किलोजूल, ओके, हीट यूनिट इज किलोजूल. इफ 50 किलोजूल ऑफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम. ओके, तो न्यूमेरिकल में आपको लिखना है Q इज इक्वल टू प्लस 50 किलोजूल. क्या होगा आपका? 50 किलोजूल पॉजिटिव में रहेगा. अगर मैंने ऐसा बता दिया इफ 30 किलोजूल ऑफ हीट इज गिवन बाय द सिस्टम, अगर यहाँ पे क्या है? सिस्टम ने हीट दे दिया है, मतलब क्या होगा? न्यूमेरिकल में आप लिखते वक्त क्या लिखोगे? Q इज इक्वल टू माइनस 30 किलोजूल, क्योंकि सिस्टम ने यहाँ पे हीट क्या कर दी है? रिजेक्ट कर दी है और गिवन कर दी है. ओके, तो वो क्या हो गया? आपका निगेटिव हो गया. तो साइन कन्वेक्शन यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिखाई है. देखो, सिस्टम है जहाँ पे मैंने हीट मतलब क्यू है जो कि सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहा है, तो हीट की वैल्यू क्या लेनी है? पॉजिटिव लेनी है. जब सिस्टम से हीट आपकी रिजेक्ट होगी तब वैल्यू क्या लेनी है? आपको निगेटिव लेनी है. तो समझ गए? हीट is given by system negative, heat is absorbed by the system positive. ओके, तो हीट हो गया. अभी नेक्स्ट है वर्क. आपको तो वर्क की नॉर्मल डेफिनेशन पता है. वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, नॉर्मल डेफिनेशन है द वर्क इज डन बाय अ फोर्स एज इट एक्ट्स अपॉन अ बॉडी moving in the direction of force. The product of force and distance traveled parallel to the force is the magnitude of mechanical work. That is, work is equal to force into displacement. What is force? Force is equal to pressure into area. Okay, so work is a force into displacement and force is equal to pressure into area. अभी वर्क के जो साइन कन्वेक्शन है वो हीट के क्या है? अपोजिट है. मतलब जो डायग्राम में आप देख सकते हैं, हीट क्या है? अगर सिस्टम को हीट दी तो क्या है? पॉजिटिव है. लेकिन वर्क डन सिस्टम को दे दिया तो वो क्या होगा? आपका निगेटिव होगा. हीट जब सिस्टम से रिजेक्ट होती है तब क्या रहती है? वो निगेटिव रहती है. लेकिन वर्क डन जब अगर सिस्टम ने कर दिया तो क्या होता है? पॉजिटिव. तो वर्क और हीट के साइन कन्वेक्शन क्या है? एक में से अपोजिट है. ओके, मतलब क्या है? अगर सिस्टम को हीट दी तो वो पॉजिटिव है, अगर सिस्टम ने हीट रिजेक्ट की
तो निगेटिव है। अगर सिस्टम ने वर्क किया तो वो पॉजिटिव है। अगर सिस्टम को वर्क दे दिया मतलब वो क्या हो गया, आपका नेगेटिव हो गया। ओके, ये साइन कन्वेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल्स। ओके, तो साइन कन्वेक्शन में कंफ्यूजन नहीं होना है। हीट एंड वर्क के साइन कन्वेक्शन अपोजिट है। सिस्टम के अंदर आ रहा है हीट पॉजिटिव, सिस्टम से हीट बाहर जा रहा है निगेटिव। अगर सिस्टम ने वर्क किया तो पॉजिटिव, सिस्टम को वर्क किसी ने प्रोवाइड किया तो वो क्या हो गया, निगेटिव। ओके, तो ये आपके साइन कन्वेक्शन है हीट एंड वर्क की वैल्यू लेने वक्त। ओके, एग्जाम्पल में आपको एक क्वेश्चन दिया होता है, उसी हिसाब से आपको क्या लेने हैं, साइन कन्वेक्शन लेने हैं। तो ये हो गया आपका हीट एंड वर्क। ओके, नेक्स्ट basic and important question asked in exam. Okay, what are the similarities and dissimilarities between heat and work? Okay, तो बेसिक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है 6 मार्क के लिए। व्हाट इज द सिमिलरिटीज बिटवीन हीट एंड वर्क एंड व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन हीट एंड वर्क। ओके, सिमिलरिटीज क्या है हीट एंड वर्क? एक तो वो दोनों ट्रांजिएंट फिनोमेना है, मतलब क्या है, बोथ आर एनर्जी क्रॉसेस द बाउंड्री। ओके, ओके, आल्सो दे आर नॉट प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। ओके, प्रॉपर्टी नहीं है वो कौन सी भी, लेकिन वो बाउंड्री फिनोमेना है, दैट इज ट्रांजिएंट क्वांटिटी, दैट इज क्रॉसेस द बाउंड्री। ओके, दोनों का यूनिट क्या है आपका, जूल और किलोजूल है, बराबर है। हीट एंड वर्क बोथ यूनिट्स आर जूल और किलोजूल, बराबर है। और बोथ आर नॉट स्टोर सिस्टम। ओके, दैट इज ट्रांजिएंट है तो स्टोर्ड एनर्जी नहीं है, वो ट्रांजिएंट एनर्जी है। ओके, बोथ आर इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, दैट इज बोथ हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन। ओके, नॉट डिपेंड्स ऑन स्टेट, it depends on path, so both are path function, that is both are inexact differential. These are the similarities between heat and work, that is transient phenomena, boundary phenomena, not stored system, inexact differential and path function. These are the similarities between heat and work. Now the comparison between heat and work. Okay, next topic, that is a difference between heat and work. Okay, first, what is the difference? That is the definition. Okay, heat is the form of energy which is transient in nature, crosses the boundary when there is a temperature difference. And work, that is the product of force into displacement. First definition comparison. Next, in heat, when heat will be transferred when there is a temperature difference, that is thermal interaction. When work will be done when there is an unbalanced force, that is mechanical interaction. Next, heat require temperature difference and work require force and displacement. ओके, अभी साइन कन्वेक्शन, हीट कब पॉजिटिव होगा, जब हीट सिस्टम को दी जाएगी। वर्क कब पॉजिटिव होगा, जब वर्क इज डन बाय द सिस्टम। हीट कब नेगेटिव होगी, जब हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। वर्क कब नेगेटिव होगा, जब वर्क इज सप्लाइड। वर्क पॉजिटिव, वर्क कब निगेटिव होगा, व्हेन डन टू द सिस्टम, मतलब सिस्टम को कोई वर्क डन सप्लाई करेगा तो वो क्या होगा, वर्क डन निगेटिव होगा। अगर सिस्टम और सराउंडिंग में टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी। अगर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ही नहीं होगा तो वर्क डन ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब हीट थर्मल इक्विलिब्रियम होगा तो हीट नहीं ट्रांसफर होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होगा तो वर्क नहीं ट्रांसफर होगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क। ओके, आपको सिमिलरिटीज पता चली और डिसिमिलरिटीज पता चली। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है 6 मार्क के लिए, राइट डाउन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन हीट एंड वर्क। आपको दोनों लिखना है, 3 मार्क के लिए सिमिलरिटीज रहेगी, 3 मार्क के लिए डिसिमिलरिटीज रहेगी। ओके, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी का। ये अभी क्या हो गई, आपके ट्रांजिएंट एनर्जी हो गई। अभी नेक्स्ट है पीडीवी वर्क। ओके, पीडीवी वर्क और इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट वर्क। ओके, पीडीवी वर्क, that is the pressure into change in volume work, or also called as a displacement work. Displacement work means force into displacement. Okay, अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया है, डायग्राम देखो। फर्स्ट, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट प्रोवाइड की है। ओके, सिलेंडर के अंदर गैस है। ओके, गैस है जो कि कॉम्प्रेसर कंडीशन में है। ओके, जो कि स्टेट 1 डिफाइन कर रहा है आपके सिलेंडर, सॉरी पिस्टन के अरेंजमेंट। स्टेट 1 के यहाँ पे है जहाँ पे आपका गैस कॉम्प्रेसर है तो उसका प्रेशर ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है, उसका प्रेशर P1 है,
वॉल्यूम क्या है, V1 है। ओके, व्हेन दिस गैस एक्सपांड होगा तो क्या होगा, पिस्टन आपका मूव हो जाएगा। जब पिस्टन अभी मूव हो रहा है, स्टेट 2 के यहाँ पे चला गया, मतलब प्रेशर आपका कम हो गया और वॉल्यूम बढ़ गया, तो आपको स्टेट 2 मिल गई, P2 एंड V2। ओके, यहाँ पे पीवी डायग्राम भी दे सकते हैं। पहले पोजीशन में प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था। जब गैस एक्सपांड हो गया तो सेकंड पॉइंट मिल गया जहाँ पे आपका प्रेशर P2 है और वॉल्यूम क्या है, V2 है। अभी यहाँ पे मुझे डिस्प्लेसमेंट वर्क, मतलब स्टेट 1 से स्टेट 2 तक जाने तक मुझे कितना वर्क डन लग गया। ओके, तो वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालना है तो मैं क्या कंसिडर करता हूँ, एक स्मॉल एरिया कंसिडर करता हूँ। ओके, स्मॉल रीजन कंसिडर कर देता हूँ जहाँ पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्मॉल कंसिडर कर देता हूँ, DL। ओके, तो स्मॉल वर्क डन क्या होगा, DW इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज DL, F इंटू DL। ओके, अभी फोर्स मतलब क्या है, प्रेशर इंटू एरिया, सो प्रेशर इंटू एरिया इंटू DL। अभी एरिया इंटू स्मॉल इनफाइनाइट चेंज लेंथ DL इज इक्वल टू व्हाट, change in volume, that is dV, small volume, that is dV. So infinitesimally work done is equal to pressure into infinitesimally change volume, that is dW is equal to P dV. Now we integrate both sides with respect to limit 1 to 2, then we get W1 to 2 is equal to integration of 1 to 2 V1 V2 is equal to P dV, that is the pressure into change in volume. This is called as a PdV work or displacement work. Okay, 2 marks question, write down the PdV work or displacement work. We draw the diagram and write down this formula, dW is equal to FdL, PADL, PdV, and W12 is equal to integration of V1 to V2 PdV. Okay, this is an PdV work or it is also called as a displacement work. Okay, now there will be two definitions. Specific heat, what is heat, normally we define heat, that is a Q, unit is a kilojoule. Okay, now specific heat, what is specific heat? Okay, normal definition is specific heat matlab it is the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of substance by 1 degree Celsius. ओके, दैट इज कॉल्ड एज ए स्पेसिफिक हीट। मतलब क्या है, कौन सा भी आप यूनिट मास लीजिए, गैस लीजिए यूनिट मास, उसका आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना है 1 डिग्री सेल्सियस से, तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट लगेगी उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। मतलब वन यूनिट मास, ओके, 1 यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ेगी उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। ओके, मतलब क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ unit mass by 1 degree Celsius, then that amount of heat is called as a specific heat. If the process is at constant volume, then the heat is specific heat at constant volume. If the process is at constant pressure, then it is a specific heat at constant pressure, that is a CP. Okay, समझ गए specific heat, amount of heat required to raise the temperature of unit mass of gas by 1 degree Celsius at constant volume, that is a specific heat at constant volume, that is a CV. It is defined as a CV. It is specific heat at constant pressure. It is defined as amount of heat required to raise the temperature of unit mass of gas by 1 degree at constant pressure, that is called as CP. Okay, next there is a that is a gamma. Gamma is called as a adiabatic index. It is the ratio of Cp by Cv. Cp is the specific heat at constant pressure and Cv is the specific heat at constant volume. That is gamma is equal to Cp by Cv. Okay, the adiabatic index. These types of formulae we require in unit number 2. Okay, now we start the next topic, energies. Okay, we start with the energies, that is the energy is the capacity to do work. Classify transient energy and stored energy. Transient energy which crosses the boundary, that is the heat and work. Okay, stored energy,
the energy which is within the system, that is a stored energy. Okay, now classification of stored energy. First energy is the potential energy. पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या है, अगर कोई भी सब्सटेंस को आप डिफरेंट हाइट से सप्लाई करेंगे तो उसका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर हाइट बढ़ा जाएगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन हाइट। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी व्हाट, इट इज़ द एनर्जी possessed by body. Okay, definition देखो, it is the energy possessed by body for doing work by virtue of its position above the ground level. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एम जी एच और एम जी जेड। ओके, एच मतलब हाइट। ओके, जहाँ से आपने ऊपर से फेंक दिया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एक तो उसका मास रहेगा, एक्सेलरेशन ग्रेविटी रहेगी जी, और एच मतलब कितने हाइट से। अगर ज़्यादा हाइट से फेंकोगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, काइनेटिक एनर्जी किससे रहती है, अगर बॉल को फेंकना है तो कितने वेलोसिटी से फेंक रहे हो आप। अगर कम वेलोसिटी से सब फेंक रहे हो तो बॉल का स्पीड भी कम होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। अगर जोर से फेंक रहे हो, वेलोसिटी ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब क्या है डेफिनेशन, इट इज़ द एनर्जी possessed बाय बॉडी फॉर डूइंग वर्क। ओके, डेफिनेशन देखो नॉर्मली सेम है, सिर्फ उसमें बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, यहाँ पे क्या है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी ऑफ मोशन। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। ओके, समझ गए। अभी नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मतलब क्या है, जो कि बॉडी ने क्या की है, पोजेस की है, एब्सॉर्ब कर दी है ड्यू टू इट्स मोलेकुलर अरेंजमेंट एंड मोशन ऑफ मोलेक्यूल। मतलब देखो इंटरनल एनर्जी किससे रहती है, अगर हमने हीट प्रोवाइड कर दी तो उसके जो मोलेक्यूल्स रहते हैं सिस्टम के अंदर क्या हो जाएंगे, वो मोलेक्यूल्स कोलाइड्स होने लगेंगे। ओके, तो मोलेक्यूल एक में के ऊपर क्या हो जाएगा, कोलाइड होने लगेगा, तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होकर रहेगी। ओके, तो जब भी आप हीट सप्लाई करते हैं तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, आपकी बढ़ जाती है। जब भी आप हीट रिजेक्ट करते हैं तब भी आप इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सो इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स किसके ऊपर है, मोलेकुलर अरेंजमेंट एंड मोलेकुलर मोशन। ओके, जो कि आपके मोलेकुलर की मोशन हो रही है या कम हो रही है। अगर मोलेक्युलर बढ़ रही है मतलब आपकी एनर्जी हो रही है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अगर मोलेकुलर मोशन डिक्रीज हो रही है मतलब आपकी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, आपकी डिक्रीज हो रही है। दिस इज अ इंटरनल एनर्जी। ओके, समझ गए। ओके, अभी नेक्स्ट डेफिनेशन है एंथैल्पी। ओके, एंथैल्पी जो है वो डिफाइन करते हैं स्मॉल एच और कैपिटल एच। ओके, एंथैल्पी, नॉर्मल एंथैल्पी डिफाइंस कैपिटल एच। ओके, इफ वी डिफाइन स्पेसिफिक एंथैल्पी। ओके, अभी स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज में, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द सिस्टम, वॉल्यूम, एनर्जीज, मास। ओके, अगर मैंने स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, स्पेसिफिक मतलब क्या है, स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, जो भी प्रॉपर्टी लेते हैं उसको हम मास से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाती है, आपकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रहती है। ओके, तो एंथैल्पी जो डिफाइन करते हैं हम कैपिटल एच से डिफाइन करते हैं। अगर मैंने स्पेसिफिक एंथैल्पी डिफाइन करनी है तो हम स्मॉल एच से डिफाइन करते हैं। अभी व्हाट इज एंथैल्पी। ओके, नॉर्मली हीट तो आपको पता है। ओके, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन एंथैल्पी व्हाट है, एंथैल्पी मतलब क्या है, टोटल हीट कंटेन्ड इन अ सिस्टम। एंथैल्पी मीन्स टोटल हीट कंटेन्ड इन अ सिस्टम। इट इज डिफाइंड एज टोटल हीट कंटेन्ड इन अ सिस्टम इज कॉल्ड एज एंथैल्पी। अभी एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है, एंथैल्पी इज इक्वल टू sum means addition of internal energy. Okay, internal energy and product of pressure and volume. So enthalpy is equal to, अगर मैं टोटल एंथैल्पी लूंगा तो कैपिटल एच इज इक्वल टू कैपिटल यू प्लस प्रेशर इंटू कैपिटल वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम। ओके, अगर स्पेसिफिक एंथैल्पी लूंगा स्मॉल एच इज इक्वल टू स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। Okay, so enthalpy is the total heat content of a system and it is the sum of internal energy and product of pressure into volume, that is called as a enthalpy. Okay, समझ गए।
एक आधे न्यूमेरिकल में कैपिटल एच लिखा होगा तो उसका फॉर्मूला आएगा कैपिटल यू, दैट इज इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अगर स्मॉल एच होगा तो स्मॉल एच मतलब क्या होता है आपका स्पेसिफिक एंथैल्पी इज इक्वल टू स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम, दैट इज अ एंथैल्पी। ओके, आप समझ गए एंथैल्पी। ओके, नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेसिक क्या है लॉ है, आपको सबको पता है। एनर्जी नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी converted into one form to another form. Okay, this is the law of conservation of energy. Okay, today we summarize this lecture, that is end of this lecture, that is law of conservation of energy. Okay, next lecture we start with the first law of thermodynamics and basic formulas required for the examples first law of thermodynamics. Okay, तो नेक्स्ट लेक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ने वाले हैं। उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है उसके लिए जो फॉर्मूले यूज़ करने हैं वो कैसे यूज़ करने हैं वो हम सब नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, थैंक यू।